the show, ladies and gentlemen, is called the Election Yatra. This is the Election Yatra. If you're stationed anywhere in and around the pink city of Jaipur, we are just outside the Albert Hall Museum. Please come in here. We will speak to you. We'll also find out more about what you, the voter, think. We've been moving across different parts of the country, and as in fact Siddharth just introduced the show to you, there is already a huge trouble for the Congress party. But before we talk about that and the Robert Vadra, reaction that you just heard, just a quick insight into where we are, why the Battle of Rajasthan is so important. Remember, Rajasthan, ladies and gentlemen, again is one of those states where you have a direct contest between the BJP and the Congress. The Congress believes that it can get a seat or two. The BJP is hopeful of Mission 25. 25 Lok Sabha seats. Here in Rajasthan, the state is voting in two phases. I want to take a moment to talk about where we are. This is the iconic Albert Hall Museum here. The most significant place here that you see, it's a piece of architecture, a piece of marvel all in itself. It's a busy chauraha, busy chalk here that you see. A lot of curious onlookers. A lot of those people there did stop us to, ask about our bus. Now, this bus is not an ordinary bus like you can see. It's a studio on wheels. The idea is to reach your doorstep because Indian democracy and the festival of democracy is where you, the voter, will decide what will be done. And the netas are coming to you for votes. And you today are the almighty, if I could use that word, to figure out what happens next. I do see some people around standing, but before I go to them, I'll also tell you more about what is expected in the latter part of the show. There's a panel of guests already on top of our bus, and this panel will also talk about what happens in the battle for Rajasthan. They will also be speaking about the many troubles in the Congress party already. Remember, in just the last 24 hours, many problems that the Congress today is facing, right from the exit of a Sanjay Nirupam to a Gaurav Vallabh to even the boxer Vijender, who many thought is close to Rahul Gandhi, but they've all, and they say the party today is quote-unquote directionless. Quickly listening to how the story has panned out, why this is more trouble for the Congress, and then we'll hop on our election yatra. कांग्रेस पार्टी की चुप्पी जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ जी। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ। तो एक कांग्रेस पार्टी में जो ये टकराव चल रहा है लॉबियों का, उसकी वजह से कांग्रेस के बाकी राज्यों में बैठे जो लीडरशिप है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, जो योग्य लोग हैं, उन लोगों का कष्ट बढ़ता चला जा रहा है। और अगर यूं ही चलता रहा तो आगे जाकर धीरे धीरे बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। कांग्रेस ने बार बार कहा कि हम सेकुलर पार्टी हैं और सेकुलर विचारधारा के आधार पर हम काम करना चाहते हैं। गांधी जी लेके आए थे ये सेकुलरिज्म की विचारधारा, हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर की है। लेकिन गांधी जी के सेकुलरिज्म में धर्म का विरोध नहीं था, लेकिन उसको अडॉप्ट किया नेहरू जी ने, जिसको हम नेहरूवियन सेकुलरिज्म कहते हैं। और नेहरूवियन सेकुलरिज्म में सबसे पहले धर्म का ही विरोध है जी। हम कहते घर वापसी हो गई है, तो मैं चाहूँगा कि सबके सब कहते हमारी बेस्ट विशेष दें और कहते काम करने के जिस तरीके को उसको आसान बनाएं। Now, there have been some back-to-back resignations that are adding to the Congress party's woes. This is not the only thing causing embarrassment to the party. Today, the BJP's Amit Malviya tweeted a video of Congress chief Mallikarjun Kharge and also of Congress leader KC Venugopal. Take a look at your screens. On the one hand, Rahul Gandhi can be seen pushing back Mr. KC Venugopal. This is as per the video that the BJP's put out during his Wayanad roadshow yesterday, after which he filed his nomination there. And on the other side of your screen, Mr. Mallikarjun Kharge can be seen speaking of how there's no discipline in the Congress and that he's being pushed from one place to another. व्यवस्था करना आपको हजारों लोगों भीड़ जैसा 4-5 लोगों में ढकला ढकली और डिसिप्लिन नहीं, मेरे को ही ढकल रहे इधर से उधर, मेरे को ही ढकल रहे इधर से उधर, मेरे को ही ढकल रहे इधर से उधर। बात करते बड़े बड़े, उनका प्रशंसा करो, वो करो, क्या करो। ये दूसरी बार हो रहा है।
Now, on expected lines, there's a war of words that's erupted now between the BJP and the constituents of the India bloc over multiple resignations and defections from the ranks of the Congress party. Watch how that fight is unfolding and how the reactions have been pouring in. जब से देश की वित्त मंत्री ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, चाहे उसमें आप सबको जोड़ सकते हैं, उन्होंने टाइम्स नाउ में ही कहा था, तो सब में वो कोई देशद्रोही हो, कोई राष्ट्र विरोधी हो, कोई भ्रष्टाचारी हो, किसी ने भारतीय जनता पार्टी के विषय में कुछ भी कहा हो, तो भारतीय जनता पार्टी का अब कोई सैद्धांतिक, नैतिक और या फिर राष्ट्र प्रेमी पैमाना नहीं रह गया है। कोई चीन से आके भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकता है, तो कांग्रेस पार्टी से कोई ज्वाइन करे, इसमें कोई नई बात नहीं है। मेरी गौरव वल्लभ को शुभकामनाएं हैं, लेकिन वो एक ऐसी जगह जाएंगे अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं जहां पर द्वार खुला है हर तरह के भ्रष्ट, बेईमान, धोखेबाज और देशद्रोही को आकर के नेता बनने का, मुख्यमंत्री बनने का या उससे बड़ा मंत्री बनने का। It's their personal decision. We cannot force anybody to stay in the party. This election is about safeguarding the constitution. This election is an ideological battle. This election is for the future of the youth of the country, whether it's their livelihood issues, whether it's the farmer issues, it's safety issues of women, whether it's about setting right the foreign policies, the bad foreign policies set by BJP. So these are multiple pronged election which is in the interest of the bigger picture for India. So unfortunately we are losing good people, but I think it's more to do. मैं समझता हूं कि दशकों से भारतीय जनता पार्टी राजनीति में रही, पिछले 10 साल से तो केंद्र में है, 20 से ज़्यादा राज्यों के अंदर इनकी सरकार है, उसके बावजूद इनको भारतीय जनता पार्टी के कैडर और भारतीय जनता पार्टी के टैलेंट के ऊपर भरोसा नहीं है। आज भी ये मानते हैं कि दशकों तक इस पार्टी को चलाने के बावजूद इनके यहाँ ऐसे लोग नहीं हैं जो संसद में जा सकें, जो विधानसभाओं में जा सकें, जो मंत्री बन सकें, जो पॉलिसी बना सकें। टैलेंट का डेफिसिट भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, इसलिए रोज कांग्रेस को गाली देते हैं और रोज किसी कांग्रेसी को अपने यहाँ शामिल करते हैं। मुझे लगता है आधे से ज्यादा जो इनके यहाँ जो सांसद हैं वो तो कांग्रेस से आए हुए हैं। So on the one hand, you've had several loyalists leaving the ranks of the Congress party and defecting to the BJP. On the other, you have Robert Vadra, the brother-in-law of Rahul Gandhi and the husband of Priyanka Gandhi, now expressing interest in fighting from which constituency? Well, it's Amethi that he's expressed his interest to contest from, a seat that Rahul Gandhi might not contest from if all indications appear that Robert Vadra might throw his hat into the ring. You also have Smriti Irani, who's exuding confidence over what she claims is her possible victory in the upcoming elections. Once again, from Amethi, she'd beaten Rahul Gandhi in 2019 by a margin of more than 55,000 votes. Let's listen in once again to what Robert Vadra said a short while ago, projecting himself as a possible contender in Amethi. अमेठी में उनको लगा है कि गलती हुई, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ आना जाना नहीं है, वहाँ कुछ प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बस वो ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार के ऊपर कैसे कुछ बेबुनियाद कोई सवाल उठाएं, इल्ज़ाम लगाएं और बस शोर शराबा करें और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करें। तो मैं देखता हूं कि ज़्यादातर वो उसी में लगे हुए हैं और क्योंकि बरसों से गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर और सारे एरिया में मेहनत से काम किया, लोगों के लिए वहाँ बहुत ही प्रगति हुई। और मैं फिर से कहूँगा कि जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था
और वो उस समय की तो राजनीति और पॉलिटिक्स बहुत अलग थी। Optics. Robert Vadra saying he is happy to join politics. He's ready to take the plunge. So is this some kind of a pattern to this? Because the Congress for the longest time has decided not to announce who will be contesting from Amethi and Raebareli. So is Robert Vadra then also telling the Gandhi Parivar, or is this a signal from the Gandhi Parivar that Robert Vadra is ready now to take over the Lok Sabha battle? And all this happening within hours after you've seen the significant exits from the Congress that is fighting the BJP, ladies and gentlemen, directly on about 180 to 190 seats. And when that happened last time around in 2019, we do know that the BJP got at least a 90% strike rate. So what is the Congress's larger game plan? We'll be talking about this, but because we are also now in Rajasthan, the election yatra has reached Rajasthan like we just introduced to you a little earlier. I also have a panel of guests with me, and behind me, because we are on top of the bus now, the idea is to give you a bird's eye view of what's going on in every constituency, in every state. Now, this is the very famous Albert Hall Museum that you see behind us. I'll take a moment quickly to introduce a panel of guests with us. Apurva Singh is spokesperson of the BJP with us. We also have Naveen Chaudhary, author and political analyst. And I'm told that he's, taken a complete lowdown of every constituency, and he'll tell us who's better placed where. We also have Tabina. She's done much the same. I was looking at her notes. So a lot of hard work, remember, goes behind getting you this data, these figures. And we have Varun Purohit, leader of the Congress, with us. And without wasting time, Varunji, before we speak about Rajasthan, I have to ask you this. कि कांग्रेस को हो क्या रहा है? अब आप देखिए राजस्थान में you might claim that of the 25 seats you might also win a few seats. But what is the overall story of the Congress? Robert Vadra has just spoken to the media. He says he's ready for a battle from Amethi. You think he should be given a ticket? देखिए आपने ऐसा प्रश्न पूछा है तो कांग्रेस का आला कमान डिसाइड करेगा, लेकिन आप जो बात कर रहे हो कांग्रेस की 5 सीट आएंगी, 10 सीट आएंगी, ओवरऑल पोजीशन भी पूछ रहे हो। जो माहौल जनवरी में था राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के टाइम, वो आज माहौल नहीं दिखता कहीं भी। अच्छा, आपने क्योंकि अब राम मंदिर का जिक्र किया, गौरव वल्लभ जो एक समय कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने आज एक चिट्ठी लिखी है जाते समय, और वो ये कहते हैं कि सनातन के ऊपर अपमान हुआ, आप लोगों ने कुछ नहीं किया, राम मंदिर में आप लोग नहीं गए। तो ऐसा तो नहीं कि आप ग्राउंड कनेक्ट आप लोगों का छूट रहा है? आपको नहीं समझ आ रहा कि जनता क्या चाहती है? वरुण जी, देखिए मैंने कई सालों से बात उठाई है, आपने जिस व्यक्ति का नाम लिया है, ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं उनको आपने नेता बताया। मुझे नेता की डेफिनेशन बताइए आप। जो झारखंड से लड़ेगा, फिर आ जाएगा राजस्थान से लड़ेगा, फिर मणिपुर पहुंच जाएगा, चुनाव लड़ने वो नेता होते हैं, फिर जमानत जब्त करके चले जाएंगे। तो रॉबर्ट वाड्रा नेता बन सकते हैं, लेकिन गौरव वल्लभ नेता है या नहीं? रॉबर्ट वाड्रा के बारे में कहा कि उनका परिवार तय करेगा। मेरे हिसाब से जो ग्रास रूट वर्कर हैं, कांग्रेस के लिए जो अपनी जान देते हैं, कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो बेसिकली कांग्रेस कैडर से आते हैं, आइडियोलॉजी से आते हैं, उनको टिकट देना चाहिए। जो आज की पोजीशन आप कह रहे हो, मोदी एक अकेला सब पे भारी, वो कहते थे एक अकेला सब पे भारी होते हैं, तो पार्टियां तोड़ तोड़ के क्यों लेके जाते हैं? अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाते। कांग्रेस के जिनका भ्रष्टाचार का जिनके आरोप है, या और पार्टियों के जिनका आरोप है, या मलाई चाटू सेटिंगबाज जो मैं वर्ड यूज करता हूं, उनको ले लेकर के टिकटें दे रहे हैं। चलिए अपूर्वा से रिस्पांस लेते हैं। अपूर्वा, बिफोर यू टॉक अबाउट राजस्थान, टेल मी दिस, बिकॉज दिस इज अ सेंटिमेंट दैट लॉट ऑफ पीपल आल्सो से दैट एक अकेला सब पर भारी, 400 पार। व्हाई डू यू नीड करप्ट नेताज फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू जॉइन यू? देखिए, जब श्री राम वनवास पर गए बहुत सी असुरी शक्तियां और राक्षसी शक्तियां ऐसी थीं जो काफी लंबे समय तक असुरी ताकतों में रही, मगर जैसे ही वो श्री राम के उसके सानिध्य में आए, उन्होंने तत्काल जो है वो अपने उनका भविष्य था उसको बदलने की सोची। और एक बात और कहना चाहूंगी कि हर अपराधी का जो है वो एक भविष्य होता है और हर संत का एक अतीत होता है। तो अगर कोई व्यक्ति विचारधारा से प्रभावित होकर, राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर हमारी पार्टी में आता है और अपना भविष्य सुधारना चाहता है, तो उसको एक मौका दिया जाना चाहिए। तो अपूर्वा, क्या इसका ये मतलब हुआ कि अपराधी संत बन जाएगा अगर वो भाजपा में आएंगे? मैं ये नहीं कह रही, वो अपनी विचारधारा बदल कर आएंगे। अगर उन्होंने अपराध किया है तो वो कांग्रेस के दबाव में किया है, अपराध किया है तो कांग्रेस की विचारधारा से प्रेरित होकर किया है, मगर जब वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आएंगे तो बिल्कुल संत की तरह आचरण करेंगे और राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़कर काम करेंगे। देखिए, अब जनता है, जनता सब जानती है। आई डू नॉट नो वेदर वोटर्स एग्री टू दिस और नॉट, बट बिफोर वी गो बैक टू अवर पॉलिटिकल पैनल, आई वांट टू गेट इन Tabina and also Naveen here, because Naveen, I saw you smiling when Apurva actually made that entire comment. You think the people don't realize this? What about, Rajasthan? Even in Rajasthan, we've seen that factional fight in the Congress between Ashok Gehlot and Sachin Pilot for the longest time.
There was a lot of buzz. Sachin Pilot will break away, have his own party. That did not happen. He might join the BJP. That did not happen. But what is the situation of the Congress, at least if we are talking in Rajasthan? Congress, the situation of Congress is gain of BJP. That is the situation. Right? अगर कांग्रेस ठीक से खेल रही थी इस समय, तो इस समय बहुत सारी ऐसी सीट्स हैं, एटलीस्ट 7 से 8 सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस बहुत इजीली निकल सकती थी. बट सम ऑफ द सीट्स जिसमें कि बीजेपी का जो ओवरऑल, अगर मैं एवरेज 25 सीट का विनिंग परसेंटेज लूं, तो 2014 इट वाज 22.56 और ये 25.87 हो गया था 2019 में. लेकिन उसमें 5 ऐसी सीटें हैं विच इज जालौर सिरोही, बीकानेर, जोधपुर एंड टोंक सवाई माधोपुर, जहां पर के विनिंग मार्जिन ड्रास्टिकली गिरा था. कांग्रेस में कहीं भी किसी ने शायद इस चीज पे ध्यान नहीं दिया कि कौन सी सीट्स पे बीजेपी का मार्जिन गिर रहा है और वहां पर वो जाके चुनाव लड़े. जालौर की सीट अशोक गहलोत को दिखती है कि अपने बेटे को जोधपुर से निकाल के वो जालौर ले आते हैं. उनको लगता है कि इजी है क्योंकि यहाँ से कैंडिडेट चेंज हो जाएगा. जीत जाएंगे? आपको लगता है जीत जाएंगे वैभव गहलोत? वहां पर अशोक गहलोत ने पूरा का पूरा कैंपेन किया हुआ है. मार्जिन कम हो सकता है, लेकिन रुम्बाराम जी जो है उनका जिस तरह का ग्राउंड का कनेक्ट है वो कनेक्ट नहीं है अभी अशोक गहलोत का वहां पर, वैभव गहलोत का वहां पर नहीं है. पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इनफैक्ट अशोक गहलोत जिस तरह से वहां ट्रीट कर रहे हैं उससे काफी नाराज हैं. तो इसलिए जो मिलना चाहिए था बेनिफिट उनके पर्सनैलिटी का, वो बेनिफिट उनको वहां पर नहीं मिलने वाला है. लेकिन बांसवाड़ा इट इज स्टिल नॉट इजी. बीजेपी कांग्रेस से रियाई है इधर, तो अपूर्वा जी ने कहा कि इधर आते हैं तो उनकी शक्तियां बदल जाती हैं. संत बन सकते हैं. तो अभी महेंद्र जी संत तो हो गए हैं, लेकिन राजकुमार रोत भी अभी तक संत हैं. कांग्रेस उनके समर्थन में आ चुकी है. कांग्रेस की सिचुएशन को हम इससे भी देख सकते हैं कि पिछले कई सालों से, जब से मुझे याद है 20-25 सालों में ऐसा टाइम नहीं आया कि कांग्रेस ने सीट्स छोड़ दी हैं किसी के लिए. तो कांग्रेस ने इस बार सीट्स भी छोड़ी हैं. ये कांग्रेस की सिचुएशन दिखा रहा है कि कमजोर है. हाउएवर अभी भी मुझे लगता है कि वरुण जी ने जो बात की थी कि कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया होता, कैडर को टिकट दिया गया होता, तो 7 से 8 सीटों पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती थी बीजेपी के लिए. ठीक है, आपने आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग बातें कही हैं. वरुण जी इसका जवाब देंगे, बट तभी ना what he said is important, that there is kind of a coalition that the Congress is wanting to create. What about the Nagaur seat? What about a Hanuman Beniwal, who last time was with the NDA, but this time because he is with the INDA alliance, then there is also Jyoti Mirda, who's contesting against him. So which really you believe are the seats which are the key or the hottest battles to watch out for? What are mistakes that both the BJP and the Congress have done so far? Rajasthan's political arena has been a bipolar. It's either dominated by BJP or Congress, and leaving hardly any space for a third force to emerge. Everybody will agree to this. And this time we have seen that in Rajasthan, after 25 seats, Congress has agreed, to form a coalition with on two seats. One is Sikar, where they are banking on. Okay, Tabina, give me one moment. I'm told there's some audio issue with your mic. We'll just fix that. We'll just fix it, or why don't you take my mic? It'll be better by the time we'll get this fixed, please. Yes. Yeah, thank you. Thanks, Dipti. Yeah. So they're banking on Amra Ram. Amra Ram is a CPIM. He's a comrade, but he has lost after 2013. He hasn't won from the last 3 consecutive elections. He has been losing. But what Congress is banking in Sikar is, farmer support. Because the region is known for jats, is known for farmers. There is there is and one could really gauge it on the day of the nomination, when he was flanked by not only Congress leaders from Delhi or Rajasthan, and we could also see Brinda Karat there and everybody there. So they're showing they're trying to demonstrate a united front there, but there is Susumenan and Saraswati, and we cannot forget, and we should not forget, in 2019 he won with a margin of around 2.5 lakh votes, and this time again, and he's in his early 70s and he's contesting once again. So what is the challenge in Sikar? And the second constituency, what I was mentioning, is your Nagaur constituency. What is interesting in Nagaur is in 2019 Hanuman Beniwal was contesting from RLP with the support of NDA, and Jyoti Mirda was the Congress candidate, and she lost to him. But this time the candidates are same, but Jyoti and
Hanuman Beniwal have, changed their parties. Jyoti is now the BJP candidate in the same constituency, and Hanuman Beniwal left in 2021. He left NDA, and, he took away his support during the farmer protest. And now this time he has the support of Congress. So, it's very, both are Jats, both are stalwarts, and Jyoti has recently lost in 2023. And it's very BJP get her, because there has been this conversation, Tabina, before I let her respond to this, that why do we need such turncoats? People switching sides from one party to the other. You believe that this is a winnability factor that they look at, or it's more about the caste equations? See, in Rajasthan, politics is mainly about the caste equation. And yes, in Nagaur, in Shekhawati region, in Seeker, you would really want to have somebody, a face, which has the support of the mass base. So in Nagaur, you have, the Jat, it's a dominant seat. But what stays a challenge for Congress, even after, having these two seats and, they're from alliance, the challenge remains that how many of votes will be transferred to either CPIM or to RLP. That's a good point, will it really help? They're banking on, the caste, but will it really help? And maybe, the Congress is trying to show that it wants to take everyone together, but then the stories that have happened elsewhere, whether it is Bengal or, other places. But I don't think so that is the real case, because here today the Congress has declared the candidate from the Dungarpur assembly area, and there were assumptions were made that maybe they'll have an alliance with BAP, but surely that did not happen. Okay, Apurva, एक चीज मुझे बताइए, हम जब अभी आ रहे थे राजस्थान की तरफ, हम जयपुर में घुसे, I only saw pictures of Narendra Modi everywhere. What about Vasundhara Raje? I've not seen much of her. I've not heard much of her. Are you believing that she doesn't need to campaign? It's only Modi who's going to be ensuring a victory for you on all seats? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आदरणीय वसुंधरा राजे जी हमारे राज्य की और हमारे भारतीय जनता परिवार की बहुत ही सम्मानीय नेता है। उनको हमने स्टार प्रचारक के अंदर भी वो हैं, और वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जाकर के अपने कैंपेन को चला रही हैं। इसके साथ ही उनके जो सुपुत्र हैं, वो भी आपको पता है 12 झालावाड़ सीट से जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो एक परिवार की महिला होने और माता होने के नाते उनका वो भी दायित्व बनता है, वो उसको भी बहुत अच्छे से पूर्ण कर रही है। और वो परिवारवाद नहीं है, लेकिन कांग्रेस का परिवारवाद है, भाजपा का परिवारवाद नहीं है। उनके बेटे को जो टिकट मिला है, तो आज ऑब्वियसली अगर मुझे भी टिकट मिलेगा तो मेरी माता भी वहाँ पे कैंपेनिंग करेगी। इसके साथ ही वो स्टार प्रचारक की सूची में भी है। अगर आपको भी मिलता है तो आपके भी परिवारजन करेंगे, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। और जहाँ तक बात रही नरेंद्र मोदी जी की, I must make this very clear, because what happens on shows like this, politicians being politicians will want you to walk in that trap. But I'm a political journalist. My idea is to, move across the country, speak to all of you, speak to experts, speak to voters, and tell our audiences that this is the picture, this is the fact, and they should decide who they should be voting for. But Apurva, before I get it to Varun and Naveen, मुझे एक चीज बताइए, अगर रॉबर्ट वाड्रा वाकई में कैंपेन में आते हैं, आप क्या बोलेंगी? ये परिवारवाद है या नहीं है? मिलनी चाहिए उनको टिकट? देखिए, 75 सालों से जिस पार्टी की कमान केवल एक ही परिवार के हाथ में है, परिवार बदल ही नहीं रहा। आप भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा नहीं है। हर 5 साल, हर 10 साल के अंदर आप देखिए, ऊपर के चरम के जो लोग बैठे हैं वो भी बदलते हैं, शीर्ष भी बदलता है, नेता भी बदलते हैं, जनता भी बदलती है, कार्यकर्ता भी बदलते हैं। मौका दिया जाता है एक आम कार्यकर्ता को। क्या कोई सोच सकता था एक वो व्यक्ति जो चाय की दुकान पे पैदा हुआ, जो चाय की दुकान पे जिनके फादर चलाया करते थे, वो आज शीर्ष नेता पे पहुंच जाएंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे की भी कुछ वैसी ही कहानी है अपूर्वा। क्या आप नहीं मानती कि वहाँ पर भी कांग्रेस ने एक मैसेज देने की कोशिश की है? या आपको लगता है वो सिर्फ दिखावा है? कितने वर्षों बाद दी है, और आज उनकी क्या स्थिति है? एक्चुअल वो मुझसे अच्छा आपका जर्नलिज्म का फील्ड जानता होगा कि खड़गे जी के हाथ में कितनी शक्तियां हैं। एक्चुअल शक्तियां जहां निहित करती है वो कांग्रेस का परिवारवाद है, वो सोनिया गांधी जी हैं, वो राहुल गांधी जी हैं। और आज उनकी क्या स्थिति है, मैं आप इन सब चीजों को छोड़िए, 2 चीजें और देखिए कांग्रेस की स्थिति पे मैं आपको बताती हूँ। सोनिया गांधी जी अपने क्षेत्र को छोड़ करके राज्यसभा से राजस्थान में आ गई। क्यों? इतने वर्षों तक अगर आपने वहां की जनता की सेवा की थी तो आप वहां पे जाकर क्या लड़ नहीं सकती थी? क्या आपको वहां की जनता की सेवा नहीं करनी चाहिए थी? आप क्यों मुंह छुपा करके राजस्थान आ गए? चलिए छोड़िए, दूसरी बात बताइए। आज डिबेट का ही मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे कांग्रेस का एक भी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हो तो बताइए, रण छोड़ के भाग गए हैं वो लोग। वो लोग जानते हैं राजस्थान की क्या स्थिति है। 25 की 25 सीटें मोदी सरकार
के पक्ष में जाने वाली हैं। यहाँ 25 के 25 कमल खिलने वाले हैं और मोदी जी की जो विजय माला बनने वाली है उसमें गुथे जाएंगे, ये आश्वस्त रहिए। आपके सब लोग छोड़ के भाग गए मैदान, क्या पता अगली बार आपसे मिले आप भी भाजपा में ही शामिल हो गए? नहीं, मैं तो नहीं होऊंगा, मैं तो ग्रास रूट का आदमी हूँ, मेरे तो 3 पीढ़ी का इतिहास है। आप देखिए अभी इन्होंने परिवार की बात की, इनकी डेफिनेशन, इनका जो नैरेटिव है 10 साल से ऐसा क्रिएट कर रहे हैं परिवार। अरे भाई आपके परिवार ही नहीं है आपके प्रधानमंत्रियों के, हम क्या करें इसमें? देखिए ये परिवार का अटैक, ये आपने परिवार का अटैक किया था लालू प्रसाद यादव। ठीक है एक एक करके बोलेंगे। प्रधानमंत्री बनाओ, मैं कब मना कर रहे हैं? हम लोग मना कर रहे हैं। वरुण इसका जवाब तो प्रधानमंत्री ने खुद दिया ना कि मोदी का परिवार पूरा देश है। नहीं तो बाकियों का नहीं है, बाकियों का इंदिरा गांधी का नहीं, राजीव गांधी का नहीं। ये तो आप बताएंगे, ये तो पब्लिक बताती है ना, जब जिताती है पब्लिक जिताती है, जब बताती है पब्लिक। किसको जिताती है? पब्लिक जो वोट, जो जनता के काम करता है। राजस्थान में टिकट सही दिए होते हैं, आप राजस्थान की बात कर रहे हो। पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, काम तो इनका था सत्तारूढ़ दल का, राजस्थान में जो आता है उसका स्वागत करना। मैं आपका स्वागत करता हूँ गुलाबी नगर की धरती पर। थैंक यू। हमारे ऐतिहासिक राम सिंह जी के साथ, राम सिंह जी के जमाने की बनी हुई है म्यूजियम। पूरा जयपुर आप देखोगे, उसमें सब हम आपका स्वागत करने को आतुर रहते हैं, लेकिन आज इनकी सरकार है, एक जना आपको स्वागत करने नहीं आया। ये इनका, आपको मैं इनकी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। क्या आप बताइए? देखिए कांग्रेस में ऑफिशियल की कोई जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस में देयर इज नो ऑफिशियल, पूरी कांग्रेस का कार्यकर्ता ऑफिशियल है, कांग्रेस का कार्यकर्ता ऑफिशियल है। हमको अलग से अपॉइंटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात आपने बात करी खड़गे साहब की, नड्डा जी के पास क्या हाथ में, नड्डा जी के हाथ में क्या है, नड्डा जी के हाथ में क्या है? अरे आप बता नहीं रहे हो, जवाब नहीं दे रहे, आपकी बात के प्रश्नों का उत्तर पूछ रहे हो। आप इनका स्वागत नहीं करना चाहते? मैंने तो किया, आपने तो नहीं किया ना। देखिए क्या होता है, कोई पट्टा उड़ा के ही कर देते, ठीक है नमस्कार ही कर देते, संस्कृति कर देते, क्षमागणी कर देते। बीजेपी का पट्टा नहीं हुआ। वरुण और अपूर्वा, देखिए क्या होता है कि जब ऐसी डिबेट नेता लोग करते हैं ना, तो हमें इशारा मिल जाता है कि आप असली क्वेश्चन से भाग रहे हैं, तो आप तू मैं घुस जाते हैं। देखिए आपसे सवाल पूछे जाएंगे वरुण। देयर इज अ प्रॉब्लम इन द कांग्रेस। जस्ट इन द लास्ट 24 hours, संजय निरुपम, Vijender, the boxer Vijender, who was once said to be very close to Rahul Gandhi, then Gaurav Pallav, they've all left you. When people are leaving the Congress, देखिए या तो कांग्रेस इज नॉट कंसर्न, आपको लगता है कि पार्टी ही परिवार है, परिवार ही पार्टी है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है, नो वन एल्स मैटर्स। वरुण देखिए आपने जिनों के नाम लिए ना, 3 में नाम लेके किसी पे टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन वो कांग्रेस बैकग्राउंड के नहीं थे। मैंने आपको कई बार कहा, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी का बैकग्राउंड का होगा वो छोड़ के नहीं जाएगा। जिसने छोड़ के गए हैं या तो भ्रष्ट, जिनके भ्रष्टाचार का, अशोक चवन, मेरी बात तो पूरी करने दो। बीजेपी को आप इतना समय दो, मेरे शहर में आए हो, मुझे भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। मैं शिकायत नहीं कर रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शिकायत नहीं करता, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। मेरे शहर आए हो, मेरे को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। मैंने कहा जो भ्रष्टाचारी जिन पे आरोप लगे, या तो वो इनकी पार्टी में गई, कह रही संत हो जाएंगे, तो क्या अपनी प्रॉपर्टी देश को दान कर दी विनोबा भावे आंदोलन के साथ? नहीं करी ना। अब वो जो डी कंपनी लेती है, वसूलियां करती है, जो मोटे मोटे भ्रष्टाचारी हजारों करोड़ के, उन्हीं को ले रहे हैं। अब वो आप दूसरी जो बात कर रहे हो, जो दूसरी कैटेगरी के लोग जा रहे हैं, वो जा रहे हैं जो कांग्रेस में आए थे। अब आप जो कहोगे भाई कांग्रेस में आके पद क्यों दिए, उस बात पे मैं आ रहा हूँ जो आप पूछना चाहते हो मुझसे। ये इन लोगों की हिम्मत नहीं है। वो जो सेंट्रल सिस्टम है पार्टी का, उन लोगों ने उनको ऑब्जर्व किया, फिर उनको पद दे दिए अपने साथ लेकर के। ये तो कांग्रेस का डिबेकल है। कांग्रेस के डिबेकल का कारण मोदी जी नहीं है। मोदी जी अगर कांग्रेस के ग्रास रूट लोगों के हाथ में, कैडर के हाथ में पार्टी हो, 1 महीने का काम है। मोदी जी कर्नाटक में जीत लेते, डीके शिव कुमार से, वहाँ जीत लेते सुक्कू से, हिमाचल प्रदेश में। बनाइए ना कैडर बेस्ड पार्टी, बात कर रहे हैं, पार्टी नहीं छोड़ेंगे, वापस पार्टी को मजबूत कर देंगे। यही तो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ। यानी कि 24 का इलेक्शन तो आप नहीं लड़ रहे हैं। गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के आए, हम तो वेलकम कर रहे हैं। मोदी जी का धन्यवाद दे रहा हूँ हार्दिक। मैं तो इतने जितने हमारी पार्टी में आए, इनको वापस ले जाओ। हमारी पार्टी खराब करिए, आपकी कराओ, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। We are happy with that. ऑस्पिशियस डे नहीं हो सकता कि कांग्रेस के बंदे यहाँ खड़े होके कह रहे हैं कि मोदी जी का धन्यवाद है, और ये भी मान रहे हैं कि कांग्रेस की माली हालत कितनी खराब है। अब एक काम करते हैं नेताओं से हटके। वरुण जी सारे कार्यालय कहाँ से बने, नोटबंदी का पैसा कहाँ गया? आप फोटो दिखाओ अपने किसी नेता की, ऑनलाइन जब तत्व नहीं होता है बातों में, तो तू मैं पर ही उतरती है कांग्रेस। तू मैं नहीं करेंगे, क्या करेंगे? ओके, व्हाट वील डू इज बिफोर वी हेड टू आवर फर्स्ट ब्रेक, तबीना एंड नवीन, बिकॉज़ दे हैव बीन वेरी पेशेंटली listening, Tabina, when you speak to the voter, out of these 25 seats, you believe that the BJP can secure a hat-trick, or the Congress has absolutely any chance anywhere? See, as a journalist, when you go to the field and you speak to the voter, and I remember reporting in 2019 also, going in the same districts and same villages where I'm going right now, and
See, voters are very silent nowadays. You know, they don't give you hints because in 2018 also, if you remember correctly, like Congress had swept Rajasthan in December 2018, and after 4 months they couldn't even secure one seat in Lok Sabha. You know, so this time also, this is one of the major challenges for Congress to whether they could make a hat trick or not. You know, whether BJP could make it to stop BJP from making hat trick. So when you talk to voters and you speak about their concerns, I mean, the concerns are basically unemployment, is poverty, and they talk about it. You know, there is economic fluctuation, economic inflation is there, poverty is there, unemployment is there. So, I mean, these are the concerns of the voters. And when you talk about the schemes, they do mention about the schemes which Ashok Gehlot government had, you know, brought in 5 years because, for example, you know, so many of the schemes which are still running and doing well. Yeah, it still has because, you know, there's not much time space. No, time has just 3-4 months have been from December till now, and they still remember all of that. Okay. So you get, a way, you know, very mixed signal where women are, you know, sometimes they'll praise some of the Pradhan Mantri. You've spoken about the women, the youth, the first-time voters. I think it's extremely important. I know, Naveen, you haven't spoken, but my, you know, producer tells me we'll quickly need to head into a break. This, remember, is the election yatra. We are right in the heart of Jaipur. We are crisscrossing the entire country. We have a panel. We are on top of our election bus. On the other side, we are back with this conversation and finding out whether BJP's Mission 25 is really possible. Back on the other side. Welcome back, ladies and gentlemen. You are on board the election yatra from the national capital. We are now in the pink city. We've moved to Rajasthan. Rajasthan, many would say that there is no contest. The BJP might just create a hat trick, might win just 25 of the 25 seats. A panel of guests continues to stay with us, and we are right outside the very iconic Albert Museum. In fact, if I just step aside, you'll get a better view of that. And also a lot of curious onlookers now wanting to have a look at our bus. This is our studio on wheels. Without wasting more time, Apurva Singh is spokesperson of the BJP with us. We have Varun Purohit, who's leader of the Congress. Tabina is a senior journalist, and she's traveled the length and breadth of the entire state, and so has Naveen. Both of them, again, telling us that which are the pros and cons, but as expected, you've seen that entire heated battle between both the BJP and the Congress. And because Varunji needs to leave, and I will start with him and then to everyone else. वरुण जी, कैन यू गिव मी अ नंबर 25 में से कितनी सीटें इस बार कांग्रेस को लगता है आपको मिलेगी? दीप्ति जी, मैं पुरोहित जरूर हूँ पर ज्योतिषी नहीं हूँ। हाँ। जो मैं बता दूं जनता के मन की बात, मोदी जी जैसे कह दूं 400 पार, 350 पार, पता नहीं कहाँ से पार करके। तो आप लोगों का भी तो कोई नैरेटिव, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो होगा ना, कोई कॉन्फिडेंस तो होगा, कोई नंबर ले पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कहा ना हमारी पार्टी का जो सिस्टम ही अलग है, डेमोक्रेटिक है। हमको ये नहीं करते 25 की 25 आ रही है, जा रही। कम से कम 15 सीटों पे बिल्कुल अच्छी स्ट्रॉन्ग फाइट है। हाँ। और मैं समझ रहा हूँ कि 50% सीट्स आ सकती है। अब जनता के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मोदी जी और हिंदुत्व पे देंगे या आईएलओ की रिपोर्ट पे युवा देगा कि कितना बेरोजगार हो गया है। अभी तो कह देंगे आईएलओ क्या होता है, आईएलओ को खारिज कर देंगे। अब मोदी जी के बाद आईएलओ पैदा होता है तो अलग बात होती। आपको मैं बता रहा हूँ, बेरोजगारी, महंगाई और जो बच्चों की दशा इस समय युवाओं की, आप जाके देखो, घर घर जयपुर आए हो, बीटेक कर लिया, इंजीनियरिंग कर ली, मेडिकल कर लिया, नौकरियां नहीं है। सुबह घर से निकलते हैं, माँ बाप की मानसिक स्थिति देखो, उन बच्चों की देखो, आकर के यहाँ कोई सिगरेट पीता है, कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, तो बेचारा गार्डन बैठ के घर जाता है, शाम को घर जाता है, नौकरी नहीं है, माँ बाप से रोज 200-400 खर्चा कैसे लेगा, 200-400 रुपए का। इनको उस पर ध्यान नहीं है। और राजस्थान की बात आपने करी, 71 सीटें आई थी, अगर टिकटें सही कांग्रेस देती तो 100 पार करती, सरकार बनाती। दूसरी बात, देखिए आपसे ही सवाल पूछा जाएगा ना कि टिकटें सही क्यों नहीं दी? आप खुद ही मानते हैं कि बहुत सारी गलतियां हो रही हैं कांग्रेस में। लोकतांत्रिक मंच है, हम एक मिलिट्री एरिया, मिलिट्री का मार्शल लॉ नहीं है, ये सच्चाई नहीं बोले। वरुण जी फिर कांग्रेस एनजीओ बन जाए ना। आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? अगर आपको टिकटें सही बांटना नहीं आता, आपके प्रचारक सही नहीं है, आप डिसाइड नहीं कर पाते, ना नैरेटिव है, ना फेस है। सब कार्यकर्ता होते हैं, प्रचारक नहीं होते, विस्तारक नहीं होते, सब कांग्रेस
कांग्रेस के अंदर लोकतांत्रिक कीमत है, हमारे वैल्यू है, ये हर कार्यकर्ता की। वो जो सिस्टम बिगड़ा है उस पर मैंने बात की, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है। मैं नहीं बोल सकता था अगर मिलिट्री टाइप सिस्टम पुलिस या पार्टी होती है। दूसरी बात, आपने करी 71 सीटें राजस्थान में आई, आप कैसे कह रहे हो 25 की 25 इनकी हो जाएंगी? 71 के हम तो नहीं कह रहे, हम पूछ रहे हैं कि आपका वही क्या तो बता रहा हूँ, अनुमान है? मोदी मैजिक होता है राजस्थान में, तो 71 भी क्यों आती? जब कांग्रेस के डिफेक्ट के बाद भी 71 सीटें आ रही हैं, तो मोदी, अरे भाई मोदी मैजिक होता तो 71 क्यों आती? आपने मोदी मैजिक की बात कर दी, तो obviously अपूर्वा will jump in here. कांग्रेस के all your eggs are in the नरेंद्र मोदी basket. सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो आप जीत जाएंगे, कैंडिडेट्स डू नॉट मैटर. इज दैट द परसेप्शन अपूर्वा? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात ये है कि आप एक ऐसे व्यक्ति के जो लीडरशिप है आप उसको नकार नहीं सकते। ये आज गरीबी की यहाँ पे खड़े होकर के बात कर रहे हैं। ये मुझे बताएं, 2014 के बाद से अब तक भारतीय जनता पार्टी ने 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। क्यों आज तक 25 करोड़ लोग 65 साल तक इंतजार करते रहे कांग्रेस के शासनकाल में कि हम गरीबी रेखा से ऊपर उठेंगे? क्यों महिलाएं 65 साल तक इज्जत घरों के लिए तरसती रही? क्या भारत, आप एक और बात सुनिए, आप सुनिए, लेट मी स्पीक। एक बात बताइए, आज इतना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, रोड्स बन रही हैं, ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं, कौन बना रहा है? इसको बताइए। स्टार्टअप्स पे बात कर लीजिए। आज से 2014 से पहले भारत की क्या स्थिति थी? गिने चुने 3 या 4 स्टार्टअप्स के नाम आते थे, दैट्स इट। और आज एक जिले के अंदर अगर मैं निकालूं तो मोर देन 500 स्टार्टअप्स मिलेगी। यूथ ने कितना अच्छा उसके अंदर ग्रो किया है। 70% मुद्रा लोन लेके, आप सोचिए एक रेडी वाले को, ये जो आइसक्रीम वाला यहाँ आपको दिख रहा है, आपका कैमरा देखिए, इसको बुला के कलेक्टर ने 10-10 हजार का लोन दिया है कि अपने बिजनेस को तुम और डेवलप करो। क्या ये 65 साल तक नहीं संभव हो सकता था? गरीब के बारे में सोचा, महिला के बारे में सोचा, युवा के बारे में सोचा। और आप लोग आपने एक बात और इन्होंने कहा कि हमारे विस्तारक नहीं होते, हमारे यहाँ पर प्रचारक नहीं होते, तो इनके यहाँ प्रचारक भी सोनिया गांधी है, विस्तारक राहुल गांधी है, इसीलिए कांग्रेस का आज हाल ये है। अगर ढंग के प्रचारक और विस्तारक रखे होते तो आज कांग्रेस अपूर्वा आपको शायद खुश होना चाहिए, क्योंकि जैसे ममता बनर्जी भी कह चुकी है कि राहुल गांधी आपकी बिगेस्ट टीआरपी है और आप उस टीआरपी का बार बार फायदा उठाते हैं। नवीन एंड तबीना नाम, व्हाट इज योर असेसमेंट ऑफ राजस्थान? आज की डेट में 21-4 का नंबर मुझे लग रहा है। 21 इज फॉर बीजेपी एंड 4 इज कांग्रेस। बाड़मेर एक सीट है जो बहुत ही बीजेपी जहां बुरी हालत में जा सकती है, कैन बी ऑन 3rd नंबर। तो रविंद्र सिंह भाटी को मुझे नहीं पता कि बीजेपी ने क्यों उसको इग्नोर किया। पार्टी में लाए पूरी पॉलिटिक्स, राजपूत पॉलिटिक्स भी। मेरे ख्याल से बीजेपी को अभी ये देखने का समय है, अभी मोदी रह रहे। मैं कुछ कॉलेजेस में लेक्चर देने जाता हूँ, यंगस्टर्स जो बात इन्होंने की, वरुण जी ने बात आती है बेरोजगारी की, लेकिन किसी को कांग्रेस पे ट्रस्ट नहीं है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 21-22 ईयर्स ओल्ड किड्स। ये लोग ये बातें कर रहे हैं। ये एक डिफरेंस मुझे राजस्थान में भी, कल भी राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिमिलर फीडबैक मुझे मिल रहा है बच्चों से। तो उनको कांग्रेस पे भरोसा नहीं है और यही एक बीजेपी का गेन है यहाँ पर। अदरवाइज बीजेपी की स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखें तो कोई बहुत बढ़िया काम नहीं हमें दिखता है टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी। अगर उन्होंने अपने कुछ बड़े नेता जो हार गए उनको टिकट नहीं दिया, क्योंकि जो हारे उनको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन आप जो है उधर से ज्योति मुर्धा को टिकट दे देते हैं। भागीरथ चौधरी बीजेपी में 30,000 वोट लाने वाले कैंडिडेट को अजमेर से टिकट मिलता है। तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी गड़बड़ है। लेकिन एक जो बहुत बड़ा डिफरेंस है जो वरुण जी कह रहे हैं बार बार में, बेरोजगारी की बात रही, दैट इज ऑफकोर्स एन इशू। लेकिन राजस्थान के अंदर सरकार बदलने में जो मुद्दा पिंक पोस्टर्स में दब गया था वो बेरोजगारी ही था। ठीक है, लेकिन चक्कर वही है कि अगर प्रॉब्लम लोग आइडेंटिफाई करते हैं तभी ना, do they see a solution in the Congress or the solution is only Modi? And because you are the, I'm giving you the last word on the show, also the women, the Labharti factor, the first time voters, the youth. Before Tabina speaks, I just want to add, जो आपने क्वेश्चन किया था, जो मुझे एक परसेप्शन समझ में आया लोगों का यहाँ पर कि बीजेपी से अब उतनी खुशी नहीं है जो आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले थी, लेकिन कांग्रेस से कोई होप नहीं है। ये रीजन है कि जो एंगर है वो निकल के नहीं आ रहा सामने। Okay, last word. What he said, I really agree to what he exactly said, because see, situation is not like 2019. It's not like 2014, where we could actually sense, or there was a murmur. You could sense that it might be a clean sweep for BJP. I think BJP itself also knows this time. So that's why they're putting in extra effort, and they have done some calculations this time on basis of caste, given more tickets to women candidates as compared. Not to forget the
carpet bombing by the Prime Minister. I've completely run out of time, Tabina. As compared. Yes. Yeah, so I'll quickly thank all our guests and thank you also to the viewers as we'll continue our election yatra. We are signing off right now from Jaipur, but we will meet you at a new location tomorrow with new voters, new guests. The idea is to ensure that we and our studio on wheels comes to see you. Stay tuned. The election yatra continues.